टॉपिक जो है दैट इज कल हमने SEO में स्टार्ट किया था वेयर वी हैव लर्न कीवर्ड रिसर्च। आज कीवर्ड रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट फेज है जो कि हमें अचीव करना होता है दैट इज नॉन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। On page optimization is a process where people try to put this keyword in such a way in their website, in their web page, so that Google can consider that page has been optimized according to that keyword respectively. Okay, for example, here I'm having my keyword which I have researched yesterday. For example, I'm taking as I'm assuming this particular keyword. The keyword is for best places to visit in Agra. For example, this is my keyword. I want to rank on this keyword, and the article which I want to write that will be particular on this topic, best places to visit in Agra, and this is the only keyword on which I want to get ranked. Now in on page optimization, what I need to do, I need to prove relevancy of this particular keyword in my web page. Example, let's go to Google and I'm typing here best places to visit in Agra. Let me just write it down, and now you will see there are a lot of results who are already ranking for this particular keyword in this Google first page. Now for example, if I'll click any one of the result out here, for example, let's click on the third one, 8 famous place, which is a culture trip. Culture trip is a website where it is mentioned that which all are the best places to visit in Agra, and that is the reason you can see this is the article which is ranking for this particular keyword, right? So this is known as article which they have written. The same article I have to write, and I need to make it relevant to this particular keyword. Okay, for example, you can see it here like this. ठीक है, so now let's learn what is this. So guys, if I would say कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे ये वाला आर्टिकल क्यों रैंक कर रहा था, क्योंकि आपको अगर जब आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ, इस कंटेंट के अंदर बताया गया है कि आप अगर आगरा में हो तो आप कहां कहां जा सकते हो। दैट इज क्लियरली मेंशन एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रैंकिंग। अब गूगल को कैसे पता लगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर पूरे कंटेंट में, इसका मतलब गूगल ने कंटेंट को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद उसने रैंक दिया है। एब्सोल्युटली गाइस, गूगल हर एक कंटेंट को बहुत डिटेल में पढ़ता है और उसके बाद ही रैंकिंग डिसाइड होती है। अगर मैं बात करूं, लेट्स गो बैक, तो इस कीवर्ड पे जो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है वो एक साइट है विच इज हॉलिडेफाई का ये वाला पेज रैंक कर रहा है। द सेकंड, ट्रिप एडवाइजर, उसका ये वाला पेज रैंक कर रहा है। और थर्ड जो मैंने क्लिक किया था, द कल्चर ट्रिप, उसका ये वाला पेज रैंक कर रहा है। नाउ दिस इज द रीजन कि गूगल हर एक कंटेंट को पढ़ता है। कंटेंट को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करता है कि किस कंटेंट में सबसे बेस्ट आंसर उसका अवेलेबल है। तो गूगल को सबसे बेस्ट आंसर इस पर्टिकुलर कीवर्ड का उसे लगा इस साइट में है। दैट इज द रीजन it started ranking here. Second, it started ranking the second most relevant answer, the third most relevant answer, and this way it's so on. And this is the reason if we also will learn that how to write that relevant content for a keyword, then you will also start ranking in Google for your keyword, and that is known as on page optimization. The day you will start writing a relevant content for your keyword, that day you will become an SEO expert. Now let's do how we can actually practically do it. So for that I need to go back to my notepad. So guys, the very first thing, कल हमने कीवर्ड रिसर्च करके निकाला कि ये मेरे लिए बेस्ट कीवर्ड है क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम सर्चेस है और इसमें ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो दोनों इसमें फुलफिल हो रहे हैं। दैट इज द रीजन आई हैव टेकन इट एज माय प्राइमरी कीवर्ड। मैंने इसको अपना प्राइमरी कीवर्ड मान लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यू नीड टू ओपन योर वेबसाइट। जो भी आपका वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल आपको ओपन करना है। एडमिन पैनल में यू नीड टू गो एंड क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमेशा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं, ना कि पेज। सो आई नीड टू गो टू पोस्ट एंड आई नीड टू क्लिक ऑन एड न्यू, राइट? बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है एंड दैट प्लगइन इज नॉन एज Yoast SEO। गाइस, Yoast SEO प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द प्लगइन, कि प्लगइन होता क्या है। मैंने आपको ये वर्डप्रेस जब हम मॉड्यूल कर रहे थे मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि प्लगइन क्या होता है। अब Yoast एक प्लगइन है, Yoast को इंस्टॉल करना है बिकॉज Yoast ही हमें ऑन पेज करने में हेल्प करेगा। तो आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ कि हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन। फिर भी मैं आपको एक बार एग्जांपल देके यहाँ पर प्रैक्टिकल करा देता हूँ सो दैट यू पीपल कैन डू इट। Go to plugin, click on add new, and the moment you will click on add new, you need to type
Yoast as a keyword there in the plugin library. For example, here you need to write YOAST. आपको मेरे साइट पे तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखेगा, बट फॉर यू पीपल आई वांट कि यू नीड टू इंस्टॉल इट फॉर राइट नाउ. सो फॉर एग्जांपल ये रहा, यू कैन सी दैट अपडेट नाउ बोल रहा है. व्हाट इट मींस कि आई हैव इंस्टॉल्ड इट ऑलरेडी. I have already installed this particular plugin, and in your case it will be asking you for install. So guys, I'm giving you 1 minute to install this particular Yoast SEO. Yoast SEO, and this is the symbol of this, and the team Yoast has created this particular wonderful plugin for on-page optimization. ठीक है, all the 5-star, you can see that 1 million plus active installs. So this is amazing tool for on-page optimization, basically plugin. So I'm giving you guys 1 minute for this. Please go and start installing this right now. जल्दी से. फिर इसको कैसे काम करते हैं, इस पे कैसे काम करते हैं, we will learn on that. Okay, not more than 1 minute. 1 minute is enough to install a plugin, and activate भी कर लेना hand to hand. Do it fast guys. इसे इंस्टॉल करना जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आप ऑन पेज करने में आपको वर्डप्रेस में दिक्कत आएगी. दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट बिफोर doing the on page optimization. ओके, नाउ लेट मी जस्ट हेल्प यू कि इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको यूज कहां करना है. नाउ व्हेनेवर यू विल गो एंड क्रिएट एनी पोस्ट, जब भी आप कोई भी एक नया पोस्ट बनाते हो अपनी वेबसाइट में जाके, सो आई नीड टू शो यू हाउ यू कैन यूज द Yoast also for this particular module. Now you can see that you can put your title वगैरह वगैरह, आपका जो भी कंटेंट है आप यहाँ पर यूज करोगे. So these all you can use it here, but whenever you will come down here you can check Yoast SEO is here. You need to click here and this will open up like this. Yoast SEO का ये आपका ओपन हो जाएगा. ये ऐसे क्लोज रहता है. यू नीड टू क्लिक हियर दिस एरो, और कहीं पर भी क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, दिस Yoast थिंग विल बी ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल ऑफ द पोस्ट ऑन ऑल ऑफ द पेजेस इन योर वेबसाइट. आपको जिस पोस्ट का, जिस पेज का भी ऑन पेज करना हो, आप सिर्फ इस Yoast को ओपन करोगे और यहाँ पर जो भी इसके रेलिवेंट चीजें हैं जो आज बताई जाएंगी उसे आपको करना शुरू करना है. बिफोर दिस आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू ऑफ द थिंग्स हियर गाइस व्हिच यू नीड टू चेक. नाउ इफ आई विल स्पीक ऑन कि हाउ वी कैन डू द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को उस कंटेंट के साथ रेलिवेंट करते हो, रेलिवेंट बनाते हो. एक कंटेंट जो कि उस कीवर्ड के ऊपर लिखा जाता है, तो उस कीवर्ड की कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कहां होने चाहिए, कितने बार होने चाहिए और कैसे कैसे होने चाहिए. दैट इज आई वुड लाइक टू शेयर यू हियर इन माय ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सेशन. सो उसके लिए मैं एक पीडीएफ ओपन करने वाला हूं जो कि मैंने खुद लिखा है. आई होप दैट पर्टिकुलर PDF you will love to read. Now this is my PDF guys. Now let me start explaining you कि ये क्या क्या होता है. Number 1, ये मेरा on page optimization का PDF है which you can easily check it here. Number 1, I mentioned here कि you need to have a very quality content in like if you're thinking to get a higher rank in Google, so make sure कि आपका content जो होना चाहिए वो बहुत qualitative होना चाहिए. So no matter how expert you are in SEO, seriously you need a content if you want to get a rank. Slide number 2. Now this is what I would like to ask you guys. Please do not copy. For example, अगर मैं बात करूं कि मैंने ये वाला कंटेंट देख लिया और इस कंटेंट को एज इट इज कॉपी करके मैंने अपने में पेस्ट कर दिया, एंड आई एम थिंकिंग अब मेरे पास भी कंटेंट है एंड आई विल स्टार्ट रैंकिंग. सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट वे, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली अ बैड प्रैक्टिस, एंड मोर ओवर Google will penalize you. Google will blacklist your site from its server, and then afterward you never will get ever rank in Google. So that is the reason I would say कि always try to write your own content. आप अपना खुद का content लिखा करो या फिर लिखवाया करो, otherwise Google will penalize you if any of the content you will copy in your website. Now try to write fresh. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि फ्रेश लिखने की. अब फ्रेश का मतलब होता क्या है? फ्रेश का मतलब ये है, अगर इसने 18 places to visit in Agra लिखा है, इसके ब्लॉग ओपन कर लेते हैं so that you can get to know. तो ये 18 places कौन से हैं? जैसे कि ये सारे इसके 18 places हैं, ठीक है, as you can check.
ये 18 प्लेसेस हैं, ताज महोत्सव, राम भरत, ठीक है, फ्रेंड्स, गोकुलम फन सिटी वाटर पार्क, डॉल्फिन द वाटर वर्ल्ड। आई डोंट नो ये वहां पर है भी या नहीं है, इन्होंने क्या लिखा है। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, मैं थोड़ा अलग वाले वेबसाइट में, मतलब जो लास्ट हम गए थे उस पर चलते हैं, द कल्चर ट्रिप में। अब इफ आई विल से कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है, अगर इसने जो भी कंटेंट लिखा है आप थोड़ा सा हटके से लिखोगे तो वो फ्रेश काउंट होगा। मतलब जैसे कि वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर इसने ये चीज लिख दिया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आपने लिखा है कि आगरा इज वन ऑफ द बेस्ट साइट सीइंग प्लेस, तो आपने इसका मतलब फ्रेश लिखा है, आपने उसको बिल्कुल भी कॉपी या इनफैक्ट सिमिलर करने की कोशिश नहीं की। तो ट्राई टू राइट एज फ्रेश एज पॉसिबल। आप जितना फ्रेश कंटेंट लिखोगे गूगल विल फाइंड इट दैट ओके यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू गिव अ फ्रेश कंटेंट। तो इसका जो फायदा है वो आपके रैंकिंग में होता है। तो वंस यू मस्ट चेक द प्लेजरिज्म ऑफ योर कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही अपना कंटेंट लिख लिया तो आपका ये चेक करना बनता है कि वेदर योर पर्टिकुलर कंटेंट इज फ्रेश और नॉट। फ्रेश और नॉट का कैसे हमें चेक करना होता है, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा टूल बता देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ये मैंने अपने साइट के लिए लिखा है कि मुझे ये साइट पब्लिश करना है। जैसे कि मैंने आपके सामने तो कॉपी किया है, बट यही मैंने अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज माय कंटेंट एंड आई वांट टू पब्लिश इट इन माय वेबसाइट। बट जैसे मैंने बोला अभी कि कोई भी कंटेंट पब्लिश करने से पहले हो सकता है कोइंसिडेंटली आपकी कुछ एक दो लाइन किसी और कंटेंट के साथ मैच कर जाए, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट लुक इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। I'm just opening small SEO tools. Guys, small SEO tools एक online wonderful tool है which can help you to check whether your content is plagiarized। मतलब ऑलरेडी किसी ने कहीं लिख तो नहीं दिया उस कंटेंट को। अगर किसी ने लिख दिया होगा then it will be a kind of a bad situation for you because Google will not give you the priority on ranking। और ऊपर से penalty लग जाएगी वो अलग। So now you can see that the first tool is plagiarism checker। So you need to click on plagiarism checker। टूल का नाम है small SEO tools। Please smallseotools.com लिख के आप यहाँ पर plagiarism check कर सकते हो। Now let me just paste my content। जो भी content मुझे अपनी साइट में पेस्ट करना है उसके पहले मुझे उसका plagiarism चेक करना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने देखा कि आप 100 वर्ड्स तक यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि एक कंटेंट अगर वो 100 वर्ड का है तो आप यहाँ पर फ्री में आके प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। अदरवाइज प्लेजरिज्म टूल मार्केट में प्रीमियम अवेलेबल होते हैं, बट इस साइट में आपको फ्री में चेक करने को मिलेगा। Once you have done it, you need to click on check plagiarism। तो once you will click on check plagiarism, now you can see that यहाँ पर ये रिजल्ट चेक करना शुरू कर रहा है। So guys, now it clearly said कि 100% प्लेजराइज्ड है। 100% प्लेजराइज्ड का मतलब कि पूरा का पूरा कंटेंट ऑलरेडी गूगल में कहीं ना कहीं पब्लिश है, जो कि है क्यों, क्योंकि मैंने कंटेंट ही यहां से कॉपी किया है। दिस इज हाउ यू हैव टू चेक। मैनुअली हमें ऐसे चेक करना होता है। आई होप इट इज क्लियर। यू पीपल हैव गॉट टू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। जैसे ही मैंने यहाँ पर पब्लिश, जैसे ही मैंने इसका प्लेजरिज्म चेक किया, मुझे पता लग गया ये 100% प्लेजराइज। What if मैं कंटेंट खुद नहीं लिखता, मैं कंटेंट राइटर से लिखवाता हूं और कंटेंट था वो दे दिया और आपने अपनी साइट में पब्लिश कर दिया। बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू नीड टू बी डबल श्योर वेदर दैट कंटेंट इज फ्रेश और नॉट। इफ इट इज नॉट फ्रेश देन आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बट इफ इट इज फ्रेश, यहां पर अगर आपको दिखा रहा है 100% यूनिक, यूनिकनेस मिनिमम 80 to 85% यूनिक होना चाहिए। अगर 15% प्लेजरिज्म है तो चलेगा, बट 85% यूनिक होना जरूरी है। बट इस केस में तो 0% यूनिक है। इनफैक्ट ये आपको ये भी बता देगा कि ये पर्टिकुलर कंटेंट कहां से है। ठीक है, तो ये कंटेंट जैसे मैंने क्लिक करके कंपेयर किया तो आपको यहाँ पर दिखाएगा, देखो द कल्चर ट्रिप का कंटेंट है। कैन यू सी दैट? उसने ये तक बता दिया कि ये कंटेंट जो है ये कल्चर ट्रिप का कंटेंट है। सो दिस इज द रीजन। अगर हम ही चेक कर सकते हैं कि कंटेंट कॉपीड है या नहीं है, तो गूगल तो सबसे सोफिस्टिकेटेड टूल लेके बैठा होगा ये चेक करने के लिए कि कहीं आपने कॉपी तो नहीं किया। सो गाइज, दिस इज व्हाट माय मेन कंसर्न हियर। डू नॉट एवर ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्सेस कंटेंट। तो प्लेजरिज्म चेक करने के बाद ही आप उसे यूज करना। ठीक है, योर कंटेंट मस्ट बी मिनिमम 80% यूनिक। जैसे मैंने बताया कि आपका जो कंटेंट है वो 80% यूनिक। जैसे ही यहाँ पर 80% यूनिक दिखाएगा, दैट कंटेंट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। ठीक है, now let's go to the next point। I hope so far so clear। well, नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑन पेज में हमें क्या और चीजों का ध्यान रखना है करने के लिए। गाइस, कोई भी कंटेंट आपका मिनिमम 400 वर्ड का होना ही चाहिए। मिनिमम 400 वर्ड्स का कंटेंट तो होना ही चाहिए इफ यू विश टू गेट रैंक, अगर आपको रैंक चाहिए। बट जहां की मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बाकी जो वेबसाइट होल्डर हैं, वेबसाइट क्रिएटर हैं या फिर ब्लॉगर हैं, वो बहुत ज्यादा कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट की क्वांटिटी के रेस में तो वो जीत जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा लिखते हैं। मैंने कहा था कि कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट दोनों मैटर करेगा। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, अगर आप कम लिख रहे हो तो आपको कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो
आज की डेट में ऑलमोस्ट हर ब्लॉगर मिनिमम 1000 वर्ड्स तो अपने आर्टिकल में लिखता ही है फॉर श्योर। अगर आपने 1000 वर्ड्स भी नहीं लिखा या फिर आपके जो कंपेटिटर हैं वो ऑलरेडी ज्यादा लिखते हैं और आप कम लिख रहे हो, तो ध्यान रखना धीरे धीरे आप रैंकिंग खोते जाओगे बिकॉज आपका कंपेटिटर आपसे ज्यादा लिखता है। तो मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी एक आर्टिकल 700-800 वर्ड का तो होना ही चाहिए, 700 to 800 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ तो आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है क्योंकि योर कंपैरेटर डेफिनेटली विल गो राइट हायर वर्ड्स देन यू, एंड इफ इट हैपेंस तो दैट इज द प्रायोरिटी फॉर गूगल। So this is the reason you need to think of your word count and how big your content it should be. Next, this is again very important. You will never face this, you yourself never will ever see any such content which is ranking, which is very tough to read. Why? Because Google believes that if any content is very tough to read, it means that content is not eligible to go in general. क्यों? क्योंकि गूगल पे एक बच्चा भी ओपन करता है, गूगल एक बहुत ओल्ड एज ह्यूमन भी ओपन करते हैं, गूगल को कम पढ़े लिखे भी ओपन करते हैं, गूगल को ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी ओपन करते हैं। तो गूगल वांट कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो दैट कंटेंट हैज टू बी वेरी जनरल, मतलब उस कंटेंट को कोई भी इजीली पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि आपने एक लिटरेचर लैंग्वेज में बहुत ही टफ इंग्लिश लिख दी जो कि कुछ लोग ही पढ़ पा रहे हैं, तो गूगल विल नॉट गिव यू अ रैंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो इसलिए ट्राई टू राइट एज इजी एज पॉसिबल। सिंपल इंग्लिश लिखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश की कोशिश मत करना। अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो तो सिंपल हिंदी लिखना है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिंदी नहीं लिखना है। मतलब बेसिकली आपको लैंग्वेज बहुत इजी रखना है। आपको पैसिव वॉइस बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अपने कंटेंट के अंदर। पैसिव वॉइस मतलब, अब मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं कैसे। पैसिव वॉइस मतलब होता है कि किसी थर्ड वॉइस में बात करना, कि आपने बोला कि विजय ये करता था, विजय वो करता था, नहीं, आप साफ लिखो विजय एक लड़का है, वो ये करता है वगैरह वगैरह। विजय के होके मत बोलो, लाइक दैट इज अ पैसिव वॉइस। Don't use kind of a passive voice in your particular content and try to write small sentences. Example अगर मैं बात करूं small sentences क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये India's most popular tourist destination Agra holds an important place in history as it is home to many architectural wonders of ये वगैरह। तो ये क्या है, ये जो लाइन लिखी जा रही है ये बहुत छोटे छोटे लाइंस लिखे जा रहे हैं, बट इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े लाइंस लिखे हैं, बट बेसिकली आपको छोटे छोटे लाइंस लिखने हैं। जैसे कि एक लाइन को बहुत जल्दी आपको खत्म करना है। आई डोंट नो व्हाई ये जो साइट है इसमें तो आपको दिख रहा है कि इसके जो सेंटेंसेस हैं दे आर वेरी लॉन्ग, बट आई वांट कि एवरी सेंटेंसेस मस्ट बी एंड्स इन 12 वर्ड्स। 12 to 13 वर्ड्स अगर आप लिख लोगे दैट इज इनफ। 12 to 13 वर्ड्स। Try to write small sentences. अगर small sentences लिखोगे it will be easy to read and Google wants that you are trying your level best to write a content in a very easy language. So that is the reason I would prefer कि if you people will focus on writing small content. Okay. The next is content decorations. Now, how beautifully you can write content, how beautifully you are presenting your content to your audiences, that also matters here in on-page optimization. For example, अगर I need to write 1000 words of content, 1000 वर्ड का कोई कंटेंट अगर मुझे लिखना है तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि वो 1000 वर्ड बिल्कुल शुरू और खत्म नहीं होना चाहिए। उसको मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि एक मेरा पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ खत्म हो गया। सो आई डिवाइडेड माई एंटायर 1000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट। पूरा जो अगर मेरा ये कंटेंट है ये मोर देन 1000 वर्ड होगा, अगर क्या होता मैं पूरे 1000 वर्ड को एक साथ लिख देता तो कोई भी उस कंटेंट को पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, बिकॉज वो बहुत बोरिंग सा कंटेंट लगता है कि ये क्या लिख दिया यार, पूरा कंटेंट ऊपर से नीचे तक एक ही बार में लिख दिया, उसमें कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो पीपल फील बोर। तो दैट इज द रीजन गूगल वांट कि यू नीड टू डिवाइड योर एंटायर कंटेंट इनटू सेवरल पैराग्राफ्स में डिवाइड करो सो दैट पीपल कैन डिसाइड कि कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इट विल बी इजी ऑल्सो टू लुक इनटू, राइट, एंड दैट इज द रीजन कि आई मेंशन कि आपको हर पैराग्राफ को मिनिमम 70 से 80 वर्ड, मतलब 7 to 100 वर्ड, 70 to 80 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाना है, सो दैट आपका जो टोटल कंटेंट है वो बहुत सारे पैराग्राफ में डिवाइड हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा पैराग्राफ होगा उतना इजी टू रीड होगा। नाउ अब मैं बात करूं बुलेट पॉइंट्स। जैसे कि अगर मेरे पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मुझे ऐसे समझाना है कि वो उसका फीचर है, तो मैं फीचर को अगेन पैराग्राफ में नहीं लिखूंगा, अब मैं फीचर्स को लिखूंगा बुलेट पॉइंट्स पे। क्यों? बुलेट पॉइंट्स और इजी होता है रीड करना किसी के बारे में। अगर एक मैं
मान लो किसी रेसिपी के बारे में आई एम राइटिंग अ कंटेंट ऑन इट कि हाउ टू क्रिएट पास्ता। पास्ता में मैंने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इस तरह से मेंशन किया है। सो दिस इज मोर इजी टू रीड, very easy to read. Why? Because I have mentioned that in the bullet point so that people can easily go and check the step number 1, step number 2, step number 3. So Google find it a better way to write good English, yeah, good language in an easiest way. So that is the reason bullet points अगर आपको लग रहा है कि यहाँ देना चाहिए, try to mention the points in bullet points. Okay, that will be more easy to read. So that is the reason why I mentioned here. Next, अगर आपको कोई भी कंटेंट लिखना है तो उसका पैराग्राफ का ना हेडिंग होना जरूरी है। हेडिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द हेडिंग, लेट मी जस्ट गो अप, this is the heading 8 famous places to visit in Agra in Agra India. This is the heading of this paragraph. First paragraph का ये heading है 8 famous places to visit in Agra and इसकी जो tagging होनी चाहिए that should be H1. जैसे कि मैंने बताया कि H1 मतलब heading 1। अगर गूगल को ये दिख रहा है कि आप हर पैराग्राफ के ऊपर पहले एक हेडिंग दे रहे हो फिर वो पैराग्राफ लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल एंड देन इट्स पैराग्राफ, ठीक है, नेक्स्ट इज आगरा फोर्ट देन इट्स पैराग्राफ। तो हर पैराग्राफ को आपने पहले उसका एक हेडिंग दिया है सो दैट पीपल कैन डिसाइड कि हेडिंग के बाद उसे पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। सो दैट वे गूगल थिंक यू आर ट्राइंग your level best to deliver your content in a good way. So this is also known as on page optimization. So you have to be clear that whenever you are writing any paragraph, make sure उसका जो headline हो वो होना वहां पर जरूरी है, otherwise Google will not find that good. हर पैराग्राफ के लिए नहीं कह रहा मैं, बट हाँ फर्स्ट पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होगा उसको हेडलाइन देना बहुत जरूरी है। इस केस में तो आई कैन शो यू एनी ऑफ अदर साइट ऑल्सो, जैसे कि एग्जांपल चलते हैं tripsavvy.com, इस पे चलते हैं सो दैट आई कैन शो यू, जैसे कि 10 प्लेसेस टू विजिट अराउंड आगरा बियॉन्ड ताजमहल। ठीक है, जैसे कि ये पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले उसने एक हेडिंग दे दिया। ठीक है, नाउ आगरा फोर्ट, then Agra's other tombs, then Mughal heritage walkthrough, Kachpura village. So these all are known as headings, kind of a headings. ठीक है, so that this has to be here. I hope you people are clear with this thing. So guys, अभी तक कितना भी है क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Please do let me know in the comment section. Please, if it is getting clear, then absolutely fine. Well, the next slide is language. Guys, language का correct होना बहुत जरूरी है. Don't try to write a content with wrong grammar. Don't try to write a content with spelling errors. Don't try to put unnecessary comma, semicolon, full stop, exclamation marks, question marks, and don't try to write the content in different font color और excessive capitalization, मतलब पूरा का पूरा content जो है आपने capital letter में लिखा है। ठीक है, डोंट डू दैट। मैंने इस वाली लाइन को रेड कर दिया, मैंने इस वाली लाइन को ग्रीन कर दिया, डोंट डू दैट, दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। सो दैट इज द रीजन गूगल डोंट वांट दैट। if you will try this kind of thing, so Google will find that you are very unprofessional and you don't know how to write a professional content. So अगर professional content नहीं है तो Google definitely उस content को rank नहीं कराएगा। तो make sure correct language is another important thing in on-page optimization. So these all are the few things which I'm telling you guys very important here in on-page optimization. अगर आपको on-page optimization में सही करना है तो इस चीजों का ध्यान रखना है। Now let's talk about keyword. अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो बेसिक था, बेसिक इन द सेंस कि ये सारी चीजें तो होना जरूरी है क्योंकि वो एक बेसिक कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है, वो एक बेसिक ऑफ कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है कि आपका कंटेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कम एंड सर्च देयर क्वेरीज, सर्च करते हैं। जैसे मैंने अभी क्या लिखा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, इट मींस आई दैट इज माय क्वेरी, आई डिड इट कि मैं आगरा के बारे में ढूंढना चाह रहा हूं। तो अगर मैं आगरा के बारे में ढूंढना चाह रहा हूं तो हाउ गूगल विल गेट टू नो कि मुझे उसको क्या रिजल्ट दिखाना चाहिए? तो गूगल पिक योर क्वेरी एज अ कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, लेट मी गो बैक एंड आई विल शो यू हियर, this particular word is a keyword for Google, वरना Google को पता कैसे चलेगा कि what you want to search। एग्जांपल, अगर मैं Facebook में जा रहा हूं और Facebook में मैं वहां पर फेसबुक में कुछ सर्च नहीं कर रहा, बस मैं टाइमलाइन सर्च कर रहा हूं, जो दिख जाएगा दिख जाएगा, जो नहीं दिख जाएगा नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज वहां पर मेरे मुताबिक नहीं चलेगा। ठीक है, फेसबुक विल नॉट शो मी द थिंग्स एज पर माय इंटेंशन।
Facebook will show the things which is the updates there, but Google is a search engine where we do search. But search करने के लिए Google को कीवर्ड चाहिए कि आपने जो उसे बोला है ढूंढने के लिए वो कैसे ढूंढेगा, with the help of keywords. और यही कीवर्ड है जिसका पूरा का पूरा जो गेम है SEO का कीवर्ड बेस होता है. Now here I'll show you. For example, हमें अपने कंटेंट के अंदर ये तीन चीज बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है. Three of the things which is very important to maintain in our own side. One is the keyword density. Number one is keyword density. Number two is keyword placements, and number three is keyword proximity. Now, what these three are? Let's go and check into the next slide. Number one, keyword density. Guys, keyword density is a ratio जो कि आपको maintain करना है अपने particular content के अंदर while writing your content, while creating your content. अगर मैंने आगरा पे एक content लिखा है कि मैं उसमें 10 या 20 places mention करूंगा, तो उसमें मेरा जो keyword है, जिस primary keyword जिसमें मुझे rank करना है, वो keyword कितनी बार repeat होना चाहिए? Minimum 1%. अगर मैं 1000 word का content लिखूंगा तो minimum 10 times it has to repeat. और अगर मैं 2000 वर्ड का कंटेंट लिखूंगा तो मिनिमम 20 टाइम्स इट हैज टू रिपीट. बट इसका भी ध्यान रखना है कि वो रिपीट भी हो तो बहुत स्पैम ना लगे कि हाँ मैंने उस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कराने के लिए डेस्परेटली मैं बार बार लिख रहा हूं. वो हम आगे कवर करेंगे, बट इतना ध्यान रखो कि मिनिमम 1% टाइम आपका जो कीवर्ड है वो आपके पूरे एंटायर कंटेंट में कहीं ना कहीं रिपीट होना चाहिए. एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने 500 वर्ड्स एग्जांपल लिया है. ऐसे ही आप जितना भी वर्ड लिखोगे उसका मिनिमम 1% होना चाहिए. बट आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड लिख के उसे स्पैम भी नहीं कर देना है. तो ध्यान रखना कि 1% का रेशियो जो है ये बहुत यूनिवर्सल रेशियो है. दिस हैज टू बी देयर. नेक्स्ट अब होता है प्लेसमेंट. व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट मींस कि कंटेंट आपने लिखा है. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अ कंटेंट. नाउ दैट कंटेंट आई नीड टू पब्लिश. बिफोर पब्लिशिंग आई नीड टू फाइंड कि जो कीवर्ड मैंने वो जो रेशियो मेंटेन किया है 1% का, 1000 वर्ड का मेरा कंटेंट है और 1% मतलब 10 बार वो कीवर्ड मुझे लिखना है. बट वो 10 बार कीवर्ड मैं एक साथ नहीं लिख सकता कि मैंने बैक टू बैक कीवर्ड लिख दिया. नाउ प्लेसमेंट मैटर्स कि कहां कहां वो कीवर्ड होना चाहिए. नंबर वन, सबसे पहले हेडिंग में वो कीवर्ड होना चाहिए. हेडिंग में मतलब if I'll go and click here any of the keyword 12 popular places to visit in Agra, तो you will see here कि यहाँ पर जो हेडिंग है ये रहा, places to visit in Agra. Can you see this? ये इसका हेडिंग है, ये इस कंटेंट का हेडिंग है. यहाँ से कंटेंट स्टार्ट है. नंबर 1, नंबर 2 ये कंटेंट स्टार्ट है. तो नाउ यू कैन सी दैट हियर कि here are some of the famous places. ये इसका H1 है, ये इसका हेडिंग 1 है. I said heading 1 of your content must contain a primary keyword. तो ये जो heading 1 है यहाँ पर उसमें primary keyword आ रहा है. primary keyword मतलब places to visit in Agra. तो now places to visit in Agra मैंने Google में सर्च किया था और ये वेब पेज तभी रैंक किया है जब इसके हेडलाइन पे हेडलाइन 1 पे H1 पे ये पर्टिकुलर कीवर्ड आ रहा है. यू कैन सी दैट गाइस कि दिस थिंग हैज देयर इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. सो दैट इज द रीजन आई मेंशन इट हियर कि आपका हेडलाइन में आपका भी प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए. तो एक प्राइमरी कीवर्ड यहाँ यूज हो गया. फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड का कंटेंट था, एक यूज हो गया. नाउ आई हैव टू यूज 9 मोर. अब वो 9 मोर कैसे होगा? नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन योर प्राइमरी कीवर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल शो पीस आर्किटेक्चर, द फाइन मुगल क्राफ्टशिप, इट वाज बिल्ट, ये वो वगैरह वगैरह. नाउ यू विल सी कि आपका जो कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं इस पे होना चाहिए. फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं होना चाहिए प्लेसेस टू विजिट इन आगरा. बट जहां की ये यहां पर नहीं है और स्टिल ये रैंक कर रहा है, डजंट मीन कि वो गलत है या ये गलत है. क्योंकि गाइस SEO इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनसर्टन. ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो करेक्ट है और वही होना है, क्योंकि ये मेरा लॉजिक है और जब भी मैं ये करता हूं आई ऑलवेज गेट रैंक. बट फॉर मेनी केसेस ये नहीं भी होगा. तो भी हो सकता है कि आप देख रहे हो कि कुछ रैंक करे, जैसे कि मेरे सामने भी एग्जांपल है. लेट्स टेक कि और कहां है, मैं इसको क्लिक करता हूं, प्लेसेस टू विजिट इन आगरा. सो गाइस ये देख रहे हो कि प्लेसेस टू विजिट इन आगरा 9 टाइम्स रिपीट हुआ है ये एग्जैक्ट वर्ड पूरे कंटेंट के अंदर. नाउ सी दैट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा 9 कहां रिपीट हुआ है. आई विल शो यू. ये 1000 वर्ड का कंटेंट है, तो 1000 वर्ड में इन्होंने 1% की रेशियो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मेंशन हुआ है प्लेसेस टू विजिट इन आगरा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेंशन हुआ है हेडलाइन हेडिंग 1 पे प्लेसेस टू विजिट इन आगरा. थर्ड मेंशन हुआ है पैराग्राफ के अंदर. फोर्थ मेंशन हुआ है अनदर पैराग्राफ में.
फिफ्थ मेंशन हुआ है यहाँ पर, सेम थिंग आई हैव मेंशनड हियर कि एवरी पैराग्राफ मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन प्राइमरी कीवर्ड, कि आपके हर पैराग्राफ में एक बार आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं किया है। हर पैराग्राफ के अंदर इन्होंने एक बार करने की कोशिश की है, बट जहां की इनके पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, हर पैराग्राफ में तो नहीं किया, बट हर 2-3 पैराग्राफ के बाद एक जरूर किया है, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर कीवर्ड डाल देंगे तो वो स्पैम काउंट हो जाएगा। आई मेंशन दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड दिस इज नॉन एज कीवर्ड प्लेसमेंट, कि आपका कीवर्ड कहां कहां होना चाहिए। आई होप सो फार सो क्लियर एंड दैट इज द रीजन ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉग है, ये आर्टिकल जो है, ये इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है, सो गाइस नाउ नेक्स्ट, यूज मोर एंड मोर स्टेमिंग वर्ड्स। स्टेमिंग वर्ड्स, अब जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया कि 9 टाइम्स तो इन्होंने एग्जैक्ट यूज किया प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, 9 टाइम्स इन्होंने एग्जैक्ट यूज किया है, बट इसके अलावा भी 1% के लिए 10 होना चाहिए था, या 10 से ज्यादा भी अगर होगा तो आपको स्टेमिंग वर्ड्स यूज करने हैं। नाउ स्टेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? स्टेमिंग वर्ड्स के लिए मैं यहां पर आपको LSI कीवर्ड्स दिखाना चाहूंगा कि LSI कीवर्ड्स क्या होता है। सो LSI कीवर्ड्स के लिए क्या करना है आपको, ये LSI ग्राफ, LSI कीवर्ड जनरेटर यूज करना है, एंड आपको अपना जो कीवर्ड है वो कीवर्ड यहां से करना है कॉपी, और इसके LSI जनरेट करने हैं लाइक दिस। फॉर एग्जांपल लेट्स कॉपी इट, और यू नीड टू जस्ट मेंशन इट हियर, पेस्ट, and now click on generate. The moment you will click on generate, now अब इससे रिलेटेड बहुत सारे ये LSI कीवर्ड्स आपको देगा कि आप ऑल टाइम प्लेसेस टू विजिट इन आगरा मत यूज करो, आप ये वाले कीवर्ड्स भी यूज करो, क्योंकि ये वाले कीवर्ड्स भी इक्वल्स टू आगरा के हैं। नाउ प्लेसेस टू विजिट आगरा ऑन फ्राइडे, टूरिस्ट प्लेसेस नियर आगरा विद इन 100 किलोमीटर्स, शॉपिंग इन आगरा, आप ये सारे वर्ड्स भी अपने कंटेंट के अंदर यूज करो। फॉर एग्जांपल इफ आई सी कि इस साइट ने यूज किया होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, नो इसने ये नहीं किया, प्लेसेस टू विजिट इन, ठीक है, बट इन्होंने बाकी सारी चीजें यूज की होगी। आप क्या करोगे गाइस, यू पीपल विल डेफिनेटली यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। आप इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का भी कंटेंट में यूज करोगे, इट विल बी अ एड ऑन टू यू। एड ऑन मतलब कि आपको फायदा होगा इस कीवर्ड पे रैंक करने का, मतलब आपका ये वाला कीवर्ड जो है प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, ये स्पैम काउंट नहीं होगा कि आप डेस्परेटली प्लेसेस टू विजिट इन आगरा पे रैंक करने की कोशिश करो, तो गूगल ये देखता है। सो ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर LSI कीवर्ड। आप LSI कीवर्ड को आप यूज करके अपने कंटेंट को और हेल्दी बना सकते हो, बिकॉज ज्यादा अगर आप सेम कीवर्ड यूज करोगे पूरे कंटेंट के अंदर तो वो काउंट हो जाएगा स्पैम, एंड स्पैम काउंट होते ही गूगल आपको पेनलाइज कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इज इंपॉर्टेंट गाइस। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि आपको उस कीवर्ड पे रैंक करना है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए मुझे वो कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना है, बट जहां मैं ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना स्टार्ट कर दूंगा, गूगल को लगेगा यू आर डेस्परेट एंड यू वांट टू गेट अ रैंक इन दिस कीवर्ड, बट स्टिल वी आर डिजिटल मार्केटर्स, हमें करना ही होगा क्योंकि हम जानते हैं इसी से ही रैंक करता है। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रिक खेलेंगे। ट्रिक ऐसा होगा कि मेरे कीवर्ड जो होंगे वो कंटेंट के अंदर तो रहेंगे, बट नॉट ऑल द टाइम कि वो सेम कीवर्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल बार बार मैं प्लेसेस टू विजिट इन आगरा नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, कभी प्लेसेस टू विजिट इन आगरा का मैं LSI यूज कर लूंगा, या फिर इस कीवर्ड के को डिफरेंट प्लेसेस में तोड़ के लिखूंगा, लाइक डिफरेंट प्लेसेस में गैप दे के लिखूंगा। एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर दिया ना, गैपिंग बिटवीन योर कीवर्ड इज नॉन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सी लगाना कीवर्ड में, डॉग्स ट्रेनिंग इज माय कीवर्ड, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस तरह से लिखना है, डॉग्स आर आवर फ्रेंड्स, देयर ट्रेनिंग आर नेसेसरी, ठीक है। ये एक लाइन बनाया जिसमें डॉग्स भी आ गया और ट्रेनिंग भी आ गया, तो गूगल को समझ नहीं आया कि मैंने डॉग्स ट्रेनिंग को अलग लिखा है, तो गूगल तो एक बॉट है, कोई ह्यूमन तो है नहीं, तो गूगल विल फाइंड अच्छा तो डॉग्स और ट्रेनिंग, तो उसको लगेगा कि डॉग्स और ट्रेनिंग अलग अलग लिखे हैं, बट एक काउंट कीवर्ड ही होगा। बट जहां की मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया कि मैं बार बार डॉग्स ट्रेनिंग क्यों लिख रहा हूं, तो गूगल के इस पेनल्टी से मैं बच गया। आई होप थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अगर आप लोग समझ गए हो देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको हेल्प करने वाला है। एग्जांपल मैं यहां पर दिखाता हूं, प्लेसेस। अब देखो प्लेसेस 22 टाइम्स है, बट प्लेसेस टू विजिट इन आगरा 9 टाइम्स था, ठीक है। अब देखो इसने प्लेसेस 22 टाइम्स लिखे हैं और आगरा 102 टाइम्स लिखा है, ठीक है। विजिट 32 टाइम्स लिखा है, आप शायद यहां पर देख रहे हो, यहां पर दिख रहा है, तो देखो विजिट कहां है यहाँ पर पूरे साइट में। सी बेस्ट टाइम टू विजिट आगरा, बेस्ट टाइम टू, ये एक LSI है, दिस इज नॉन एज LSI, ठीक है। नेक्स्ट तो हेडलाइन पे आ गया, देन देखो आफ्टर यू हैव विजिटेड, विजिटिंग, तो ये विजिट वर्ड काफी बार है,
प्लेसेस टू विजिट नागरा इसमें आ गया, प्लेसेस टू विजिट नागरा इसमें आ गया, यू मस्ट विजिट। तो इसका मतलब इसका पूरा कीवर्ड था प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, जस्ट इसका पूरा कीवर्ड था प्लेसेस टू विजिट इन आगरा। अब इसने क्या किया कि ये प्लेसेस, इस पूरे कीवर्ड को भी इसने 9 बार लिखा है, इन टोटल 9 टाइम्स लिखा है, और प्लेसेस वर्ड को भी इसने बहुत बार यूज किया है, विजिट वर्ड को भी डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के डिफरेंट पैराग्राफ में यूज किया और आगरा को भी यूज किया है। तो एज पर गूगल तो ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड है, बट इनका जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर। अब गूगल बॉट होने के नाते इतना बड़ा ट्रिक नहीं समझ पाता है, जस्ट बिकॉज द बॉट गूगल आर वेरी मच, Google is smart but not mature. Mature matlab he cannot judge anything. He only can see and he can just check what you have done as per the algorithm or not. If you have made a mistake, you will be penalized, and if he did not find a right mistake, like the regular mistake, then he will not do anything. So here exactly, as being a digital marketer, what we are doing, we are trying to put a blindfold in Google eyes. ठीक है, that is what we are doing. So I hope guys you so far has, अगर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं लिखोगे, बिलीव मी आप बिल्कुल भी रैंक नहीं करोगे, क्योंकि गूगल ओनली वांट क्वालिटी कंटेंट, नॉट जस्ट अ कंटेंट। यू हैव टू हैव अ क्वालिटी, और क्वालिटी इसी से मेंटेन होता है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपकी वेबसाइट का ऑन पेज ऐसे ही होता है। इसके अलावा ऑन पेज के अलावा, सॉरी ऑन पेज में कंटेंट के अलावा एक चीज का और ध्यान रखना होता है, विच इज नॉन एज HTML ऑप्टिमाइजेशन। अब HTML ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं अभी बता दूंगा तो व्हाट आई वांट दैट यू पीपल शुड फर्स्ट लर्न दिस थिंग एंड देन आई विल टेल यू कि HTML ऑप्टिमाइजेशन आपको कैसे करना है। HTML ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट दैट टफ, ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो डू इट, but I want you to take time to learn first this on-page optimization. The once on-page optimization will be get done, I will help you to learn this HTML optimization also.